ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے مکہ معاہدہ بڑا واضح ہے کہ ایک ملک پر حملہ تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے صحافیوں کو ہفتہ وار پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 7 اگست کو ہونے والا مکہ سمٹ اہمیت کا حامل رہا۔ پاکستان نے مکہ معاہدے کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا۔ مکہ معاہدہ تینوں ممالک کے برادرانہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہے۔ مکہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے۔ معاہدہ علاقائی امن و استحکام کے لیے تینوں ممالک کے عزم کا عکاس ہے۔ مکہ معاہدے پر خطے اور اس سے باہر اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ مکہ معاہدہ امن و سلامتی کے حوالے سے محض 3 ممالک تک محدود نہیں ہے۔ مکہ معاہدہ دفاعی نوعیت کا ہے جس کا مقصد امن و سلامتی ہے۔ مکہ معاہدہ بڑا واضح ہے کہ ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن کے حوالے سے پر امید ہے اور مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے حل کے لیے پرخلوص کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ کشیدگی اور تناؤ میں اضافے کے بعد فریقین نے بات چیت بھی کی ہے۔ اسلام آباد MOU کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن واضح ہے۔ ہم پاکستان سے متعلق مثبت بیان پر ایرانی صدر کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سعودی عرب سول جوہری ڈیل کو دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب کے سول جوہری توانائی کے حق کا احترام اور حمایت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلی بیان ڈیل کی مکمل تفصیل سامنے آنے کے بعد جاری کریں گے۔ اور دوسری جانب سعودی عرب کی کابینہ نے مکہ میں ہونے والے پاک سعودی ترکی مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس کے نتائج کو سراہتے ہوئے اسے تینوں ممالک کے درمیان طویل المدتی دفاعی شراکت داری کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد کے لیے کاوشوں کو سراہا گیا۔ سعودی کابینہ کے مطابق مکہ اجلاس نے سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تاریخی تعلقات اور اسلامی یکجہتی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کی توثیق کی ہے، جبکہ طویل المدتی دفاعی شراکت داری کے لیے ایک فریم ورک بھی قائم کیا گیا ہے۔ اجلاس میں خطے کی صورتحال، آبنائے ہرمز اور باب المندب میں بحری راستوں کی سلامتی سمیت یمن اور فلسطین کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے سفارتی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے۔ عالمی جریدے ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق پاکستان اپنی سفارتی صلاحیت کے باعث ایران اور امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ فوجی اور اسٹریٹجک شراکت داری اور ایران کے ساتھ تاریخی روابط پاکستان کو ایک منفرد سفارتی مقام فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان اور قطر ایران امریکہ کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی کی کوششوں میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آغاز سے ہی ایران اور امریکہ جنگ بندی میں ثالثی کی قیادت کر رہے ہیں۔ ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق امریکہ، ایران، سعودی عرب اور چین کے ساتھ پاکستان کے بیک وقت مضبوط تعلقات نے اسے ایک قابل اعتماد ثالث بنا دیا ہے۔ پاکستان اور قطر جولائی میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مشترکہ تجارتی پیشکش بھی کر چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان ماضی میں بھی امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی روابط قائم کرانے اور ایران عراق جنگ کے دوران اہم سفارتی کردار ادا کر چکا ہے، جبکہ حالیہ پاک سعودی ترک دفاعی معاہدے نے خطے میں پاکستان کے اسٹریٹجک کردار کو مزید نمایاں کیا ہے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان ایران دو طرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران ایرانی سفیر نے اعلیٰ سطح دوروں کے حالیہ تبادلے کے بعد مختلف دو طرفہ تعاون کے میکانزم پر ہونے والی پیش رفت سے نائب وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ دونوں جانب سے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ترجیحی شعبوں میں ایران کے ساتھ روابط مزید گہرے کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ مسائل کے حل اور پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر ذریعہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ امریکی اخبار نے پینٹاگون کی دستاویزات کے حوالے سے بتایا ہے کہ یمن میں گزشتہ برس امریکی حملوں میں 150 سے زائد شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے اعتراف کیا ہے کہ یمن میں امریکی فضائی حملوں میں گزشتہ سال 153 شہری ہلاک اور 243 زخمی ہوئے ہیں۔ پینٹاگون کے مطابق بیشتر شہری ہلاکتیں اپریل 2025 میں 3 امریکی فوجی کارروائیوں کے دوران ہوئیں۔ ایک فضائی حملہ 6 اپریل کو سنا میں کیا گیا جس میں 5 شہری ہلاک ہوئے۔ دوسرا حملہ 17 اپریل کو راس عیسیٰ بندرگاہ پر کیا گیا جس میں 80 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ تیسرا حملہ
28 अप्रैल को सदा के करीब किया गया, जिसमें 47 शहरी जानों से हाथ धो बैठे। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में अमरीकी फौजी ऑपरेशन से मुतालिक 15 इजाफी कार्रवाइयाँ अभी ज़ेर गौर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर जा रही है और अमरीकी फौजी दस्तों का अब नए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। जॉइंट बेस्ड एडवेंचर्स में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के हवाले से मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अब नए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं, वहाँ किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ हमारा कंट्रोल है। हमारी बहरिया शानदार है और हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतरीन जा रहे हैं। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि मैं ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। उन्होंने मुसलसल मुझसे झूठ बोला है। इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान का नहीं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुश्तरका वज़ारती कमीशन दो तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सुतून है और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान बेलारूस मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास से खिताब करते हुए जाम कमाल खान ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के अज़म पर कायम है। आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे में तेज़ी से तब्दीली आ रही है, इसलिए दो तरफ़ा शराकत दारी को नतीजा खेज़ ताउन में तब्दील करना होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तिजारत, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत, ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन के लिए वसी इम्कानात मौजूद हैं। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की नक्लो हरकत बढ़ाने और तिजारती राब्ते मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप अहम किरदार अदा करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तानी नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें मुल्क का रोशन मुस्तकबिल और कौमी तरक्की की सबसे बड़ी क़ुव्वत करार दे दिया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की तकरीबन 67% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवानों को मयारी तालीम, रोज़गार, हुनरमंदी, कारोबार और फ़ैसला साजी में मौक़े देना कौमी ज़िम्मेदारी है। नौजवान ख़वातीन को भी तालीम, टेक्नोलॉजी, कारोबार और क़यादत के मौक़े फ़राहम करना ज़रूरी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ख़बरदार किया कि बेरोज़गारी, तालीमी मौक़े की कमी और डिजिटल ख़वानदगी के खला का बरवक्त तदारुक ना किया गया तो माशी जमूद और माशरती बेचैनी समेत दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को जदीद तालीम, फ़नी तरबियत, रोज़गार, कारोबार और डिजिटल जिद्दत के ज़रिए बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स, मुआवज़ादार इंटर्नशिप और मसनूई ज़हानत की तरबियत समेत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जारी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी ने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तलबा व तालबात से खुसूसी नशिस्त में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी, रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडे, अफ़गानिस्तान, सोशल मीडिया और गवर्नेंस समेत मुख्तलिफ अमूर पर इजहार ख्याल किया है। समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में पाकिस्तान भर के 21 स्टेशन से 6150 से ज़ायद तलबा व तालबात शरीक हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासिर तशद्दुद के ज़रिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि इंसानी हुकूक और मिसिंग पर्सनस के उन्वानात को रियासत मुखालिफ बयानिए और दहशत गर्दी के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही हैं। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर के हवाले से अफ़गान अबूरी हुकूमत को अपने आलमी वादों की पासदारी करना होगी। मकबूल बयानिया हमेशा हक़ का बयानिया नहीं होता, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ही हक़ का साथ देना है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। परचम गली में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरी आकर ख़रीदारी करने में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेपर मार्केट अलमारूफ परचम गली में और मेरे साथ एक शहरी हैं जो कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपने बाल बच्चों और इन्हें खाने के लिए जो है वो जश्न आज़ादी के जो मुख्तलिफ बैजिस है, झंडे हैं और दीगर सामान खरीद रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज ही ये बताइएगा कि आप कहाँ से आ रहे हो और क्या चीज़ आपने यहाँ पर? मैं आया हूँ औरंगी टाउन से, ये बाजी लेने आया हूँ, यहाँ पे झंडे लेने आया हूँ। औरंगी टाउन से आया हूँ। इस बार की जश्न आज़ादी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आम जो दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर महंगी चीज़ें मिल रही है कि इस गली में आने की वजह क्या है? ये बोतल गली कहलाती है। यहाँ पे ये झंडे बहुत सस्ते मिल रहे हैं। ये 100 के 3 मिल गए, जैसे बाजे मिल गए। 180 रुपये का बाजा पड़ा, सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही है। यहाँ पे आए, यहाँ से ले।
जी बिल्कुल, हमारी बात हुई शहरी से, उनका यही कहना था कि अपने घर और दोस्त अहबाब के लिए भी यहाँ पर सामान खरीदने आए हैं, और यहाँ पर दीगर जो मार्केट है शहर की, जो दीगर जो कैंप्स लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कतरे महंगी हैं, लेकिन ये जो गली है जिसे बोतल गली, परचम गली और पेपर मार्केट भी कहा जाता है, यहाँ पर दीगर जो शहर के इलाके वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर जो जश्न आज़ादी की जो तैयारियाँ हैं उसके लिए सामान की खरीदारी कर रहे हैं। और आप मेरे कैमरामैन अगर आपको अभी दिखाए तो जो रश चल रहा है वो मुसलसल यहाँ पर रश है, और सुबह से लेके रात तक की ये रश बरकरार रहा है, और जो लोग हैं वो यहाँ पर आके जश्न आज़ादी की जो है वो खरीदारी करने में मसरूफ़ हैं। जी। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी की आमद पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया है। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज़ादी एक अजीम नेमत और लाखों कुर्बानियों का समर है, इसलिए इसकी हिफाजत और कदर करना हर पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है। शहरियों का कहना था कि तालीम और किरदार साजी के ज़रिए नई नस्ल को मुल्क की तरक्की में मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार किया जाएगा। कश्मीरी अवाम खिदमत खल्क और रिज़्क़ हलाल के ज़रिए माशी और माशरती बेहतरी में भी अपना हिस्सा डालने के अज़म रखते हैं। कश्मीरी अवाम ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे को उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, खुददारी और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत करार देते हुए वतन के बहादुर मुहाफ़िज़ों को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। शहरियों ने कहा कि कश्मीरी अपनी हर सांस को पाकिस्तान से जुड़ा हुआ समझते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत उनके लिए ईमान, वफ़ा और तारीख़ी वाबस्तगी का रिश्ता है। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए NTN।